बोला भी था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी इसने उसी जगह पे मारा और जानबूझ के मेरे बच्चे को अबॉर्ट करने की कोशिश की गई। और वो मुझे बहुत मारता था और मेरी वीडियो बनाता था, और वही वीडियो वो 4 लोगों को सेंड भी करता था कि आज मैंने इसको बहुत मारा है। वो इंसान ही नहीं है, वो जानवर है। वो जब मुझे मारता था ना, तो ये जो मेरा जो नेक है इतनी ज़ोर से दबाता था कि एज इफ़ लगता था कि अब ऐसे चला हो गया, ख़त्म है, मेरी कहानी ख़त्म है। उसने भी लिया था वो ड्रग, मुझे भी दिया गया था, और उसने मेरे साथ बहुत गलत करने की कोशिश करी थी अपनी दोस्त के सामने। ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನುಸ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೆದರಿಕೆಯ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. क्योंकि वो 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी से मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। एक 4 दीवारी में बंद होके भी मुझे डर लगता है, ठीक है। जब मेरे घर की बेल बजती है ना, तो मुझे लगता है कि कहीं वही तो नहीं है, कोई कुछ करने तो नहीं आया है, ठीक है। तो मैं इस डर में नहीं जीना चाहती। ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಲವ್ ಜಿಹಾದ್, ಮತಾಂತರ, ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿ, ನಂಬಿಸಿ, ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗೋಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೇಸ್ಗಳು ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ, ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ್, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆರೋಪಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಸಹೋದರಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಖ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಸಾಯೋದಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷದ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನುಸ್ ಉರ್ಫ್, ಇವನನ್ನು ಅಬ್ರಹಂ ಖಾನ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇವನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಶೋಕ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ವೋ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಯಾನಕ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇವನ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮತಾಂತರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 3 ಬಾರಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ. ತದನಂತರವೂ ಸಹ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಂಬಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕವಾದ ವಿಚಾರ ಒಂದಿದೆ. ಇವನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿತ್ತು, ಅನೈತಿಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ, ಇವರ ಮೊದಲ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ನಡೆದದ್ದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಮನೆ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೆಸರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಡ್ರಗ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದ ಆದಿತ್ಯ ಆಳ್ವ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇವರ ಮೊದಲ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಹೊಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. मम्मी देखो यार, हम लोग विवेक ओबरॉय के बंगलों में रुके हैं. ओह माय गॉड, ये बेडरूम है. शिट. ಸಹೋದರಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಸಹೋದರಿ. ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿ. ಕಳೆದ 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನುಸ್ ಜೊತೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಘಟನೆಯ ಕರಾಳತೆಯನ್ನು ನೊಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಕೇಳೋಣ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಅವಳ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಳ ಹಾರೈಕೆಗೆ ಬಯಸ್ತಾ ಅವಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವಳ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಕೇಳೋಣ. जी नमस्कार. नमस्कार. पहली बात, हम आपके दुख को समझ सकते हैं क्योंकि कर्नाटका में बहुत सारे ऐसे लव जिहाद केसेस इससे पहले भी हो चुके हैं. शुक्र है आप जिंदा हो, इसलिए आप ही बताओ कि क्या हुआ, ये जाल में आप कैसे फंसे, ये लव जिहाद कब पता चला कि ये लव जिहाद है,
आपको कन्वर्ट कर रहा है और कन्वर्ट भी हो चुके हो, इसके बारे में आप खुल के बताएं, उसको आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा मिले। मैं मोहम्मद यूनुस नाम के लड़के से 2022 में फ़र्स्ट टाइम मिली। मेरे पड़ोसी थे, वो उनके घर पे आना जाना था, वो उनके ख़ास दोस्त हैं। तो मैं उनको पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने उनको वहीं पे देखा था, लेकिन हमारी वहाँ पे कोई किसी तरह की बात कुछ नहीं हुई। बस वो एक सिंपल बस हम वहाँ पे एक दूसरे को हमने देखा था। उन्होंने मुझे खुद सोशल मीडिया के थ्रू आफ्टर 5 और 6 मंथ खुद मेरे को अप्रोच किया, ठीक है, एक माफ़ी मांगते हुए, माफ़ी मांगने के तरीके से अप्रोच किया कि मैंने उस दिन तुमसे बात नहीं करी, तुमको अवॉइड किया, ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मुझे बुरा लग रहा है करके मैं तुम्हें आज टेक्स्ट कर रहा हूँ। तो वहाँ से हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू हुई। तो मेरे दिमाग में उस वक्त ऐसा उस टाइम कुछ था नहीं कि इस इंसान के लिए मुझे कोई फीलिंग्स है या इससे दोस्ती करनी है, या वो बस नॉर्मल एक कॉन्वर्सेशन के रूप में हमारी बातचीत शुरू हुई थी। लेकिन वो धीरे धीरे वो अपनी अच्छाइयाँ मेरे सामने दिखाता था, ठीक है। तो उन चीज़ों से प्रभावित होकर मैं शायद 2-3 महीने के बाद में हमारी रिलेशनशिप शुरू हो गई, ठीक है। फिर वहाँ से वो मुझे डायरेक्टली शादी के लिए अप्रोच करना, ठीक है, ये उसका फर्स्ट स्टेप था, जिसके वजह से मैं इम्प्रेस हो गई कि हाँ, ये मेरे लिए सच में सीरियस है। ना मैंने जात देखा, ना धर्म देखा, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस एक इंसान को देखा जो मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करने के भाव से वो मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है, मेरे साथ रहने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ से मेरी मेंटलिटी वैसी थी कि मैं इस इंसान के साथ रहना चाहती हूँ, ये अच्छा लड़का है। तो हमारी रिलेशनशिप वहाँ से शुरू हुई। वो एक नॉर्मल जैसे एक कपल रहते हैं, वो उस तरह से मेरे साथ हम रहता था। स्टार्टिंग में हम 3-4 महीने बड़े खुशी से ही थे, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं था मुझे उसके ऊपर। लेकिन धीरे धीरे वो शादी की बात को लेके जब मैं उसको पूछती थी कि तुमने तो मुझे ऐसा किया था, तो क्या इरादा है तुम्हारा, तो नहीं, मैं तुम्हें पहले तुम मुस्लिम तो बन जाओ प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमारे रिलीजन में एक हिंदू लड़की से हम शादी नहीं कर सकते हैं, तुम पहले प्रॉपर कन्वर्ट होना है। ये चीज़ें मेरे दिमाग में डालना शुरू करा। मुझे तब जाके रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, यहाँ ये स्टेप मुझे उठाना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे साथ रह पाएंगे। तो चलो ठीक है, मैंने उस चीज़ के लिए भी उसका साथ दिया कि हाँ ठीक है, हम साथ में रहना है खुशी खुशी, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं। तो शादी के नाम पे रिलीजन कन्वर्जन इज़ इक्वल टू लव जिहाद, क्योंकि रिलीजन कन्वर्जन तो दिल से होता है ना, कि आप उस पर्टिकुलर देवता में, भगवान में आप बिलीव कर रहे हो तब। लेकिन किसी दूसरे पर्पस से अगर आपको वो चीज़ कराया जा रहा है तो वो तो गलत है। इस चीज़ का मैंने विरोध किया था उसी टाइम। तो उसने वहाँ से मुझे मारपीट करना शुरू किया। जब आपने कन्वर्शन को विरोध किया था, उसी दिन से वो मारपीट करना शुरू कर दिया था? हाँ, उस टाइम से उसने मेरे पे फर्स्ट टाइम हाथ उठाया था। मुझे लगा कि ये गलत है। मैंने फिर साथ नहीं रहने का विरोध किया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ठीक है। तो वो पहले रिक्वेस्ट नहीं, ये कन्वर्शन का आप बोल रहे थे, कन्वर्शन के बारे में बोलो कि कन्वर्शन कैसा हुआ था? जब आप पहले ना बोले, बाद में वो कैसा मनाया आपको? उसने मुझे विश्वास दिलाया कि हम ये रिलेशनशिप में रहेंगे, साथ में रहेंगे, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओ, मैं भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। और इस चीज़ का बिलीव दिलाने के लिए उसने बोला कि हम पहले कन्वर्जन प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है, तो हम इट्स अ प्रूफ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। वो हम जो भी चीज़ें लिखवाएंगे उसमें मेरा नाम मेंशन रहेगा, तो ये प्रूफ रहेगा ना कि हाँ, हम दोनों साथ में हैं। तो वो मुझे विश्वास दिलाने की कोशिश में ये कन्वर्जन कराया। उसने अपने दोस्तों में बात करी थी, तो उसी में से किसी ने उसको लॉयर का लिंक दिया था कि हाँ, इस पर्टिकुलर लॉयर से आप बात करो, ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो तब तक तो सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से चल रही थी। फिर मुझे पता चला समहाउ उसी के फ्रेंड सर्कल में से कि ये आदमी पहले से शादीशुदा है। पहले से शादीशुदा है? पहले से शादीशुदा है, ठीक है। तो जब मुझे पता चला तो उस बात का मैंने विरोध किया कि ये तो गलत है, तुम पहले से शादीशुदा होके तुम मेरे साथ रह रहे हो, मेरे साथ रहना चाहते हो, मेरे से शादी भी करना चाहते हो। तो उसने बोला, मुझे मनाया कि नहीं, उसके साथ मेरी नहीं बनती है, उस औरत के साथ मैं उसको छोड़ने वाला हूँ बहुत जल्द, इसलिए मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे से शादी करूँगा।
ठीक है, इससे पहले आपका फिजिकल रिलेशनशिप शुरू हो बन गया चुका था हमारा। क्या लगा उस दिन? मैंने बोला स्टार्टिंग में 2-3 महीने जब हम रिश्ते में थे तब तक सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है, लेकिन बाद में मुझे बहुत रिग्रेट होता था कि जब इतनी सीरियस मोड पे आके तुम मेरे साथ मारपीट करते हो, तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो, ये सब चीज़ें मुझे पता चली धीरे धीरे, ठीक है। तो इन चीज़ों से फिर मैं अलग होने की मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन समहाउ वो मुझे रोक लेता था, प्यार मोहब्बत से मना लेता था, इमोशनल ब्लैकमेल करके, तू मेरे को छोड़ के मत जा, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो करता था। 2 घंटे पहले अगर उसने मुझ पे हाथ उठाया तो 2 घंटे के बाद वो कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान, ठीक है। तो वैसे तरीके से वो मतलब अपने आप को मेरे सामने रखता था। ओके, जब कन्वर्शन हुआ, जी, कन्वर्शन के बाद तो शादी होना ही था। होना ही था। क्यों नहीं? उसने 2 बार मेरे साथ मजाक किया, शादी जैसी चीज़ का मजाक बनाया। पहली बार भी कन्वर्ट होने के बाद में वो उसने लॉयर के थ्रू ये बोला था कि हम अप्लाई करने के लिए जाएंगे कोर्ट में। तो मैंने बोला था कि ये तो जो भी कन्वर्जन है ये ठीक है, बट मैं मुस्लिम तरीके से शादी नहीं करूँगी। मुझे, अगर तुम मेरे साथ शादी कर रहे हो तो मैं लीगल तरीके से हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू मैं शादी करना चाहती हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मुझे सिर्फ शादी के नाम पे मैं इस्लाम फॉलो नहीं करूँगी, ठीक है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू वो हमें एक पेटिशन फाइल करनी थी, वो प्रोसेस उस लॉयर ने बताया था। जिस दिन वो फाइलिंग करनी थी, मेरे को इसने सुबह से रेडी करा के घर में रखा, बट ये पूरे दिन नहीं आया, बहाने बना दिया इसने, ठीक है। ये पहली बार हुआ। दूसरी बार कुछ महीनों के बाद फिर इसने सेम प्रोसेस स्टार्ट करा और फिर सेम चीज़ किया, मुझे रेडी करा के घर में रखा, फिर नहीं आया। आज हमें जाना है और ये पूरे दिन गायब रहा, नहीं आया। ये 2 बार धोखा दिया इसने शादी के नाम पे। तब मैं पूरा श्योर हो गई थी कि ये शादी नहीं करेगा, ये इंसान आज भी नहीं करेगा, कल भी नहीं करेगा और 4 साल के बाद भी नहीं करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में आ गई थी। तो मैं समझ गई थी कि ये बस ऐसे ही मेरे साथ बस खिलवाड़ी कर रहा है, कुछ ये सीरियस नहीं है, शादी वादी नहीं करने वाला है, ठीक है। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि नहीं, ये मेरा इस्तेमाल कर रहा है पैसे के लिए, ठीक है, क्योंकि वो जॉब नहीं करता है तो वो फाइनेंशियली कम्प्लीटली वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट था, ठीक है। और दूसरी चीज़ें कि अब मतलब उसकी सारी ज़रूरतें मैं पूरी करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैं तो प्यार में कर रही थी ना, लेकिन उसका तो इंटेंशन कुछ और था। उसको तो ना वो अपनी पहली बीवी को छोड़ रहा था, ठीक है, जो कि उसने मुझे बोला था कि मैं उसको छोड़ रहा हूँ तभी मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में हूँ, ठीक है, लेकिन तुम तो दोनों औरतों के साथ तुम ये कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो। तो वो बस अपने चीज़ें, ज़रूरतें पूरी करना, इन सारे इंटेंशन के साथ वो मेरे साथ रिलेशन में था, ठीक है। और ये कन्वर्ट कराना ताकि मेरे दिमाग में ये रहे कि हाँ ये सीरियस है शादी को लेके, इसीलिए ये सारी प्रोसेस स्टेप ये जब ये कन्वर्ट करना या कन्वर्शन होना ये उसने आपको सीड किया, उस वक्त क्या बताया गया था? कुछ जिहाद के बारे में, कुछ जो उनका होता है ना मुसलमानों में, क्या क्या कुछ सीखना वगैरह कुछ हुआ? मुझे जब लॉयर ने मुझे बस इतना ही बोला था कि आपको पेपर पे साइन करना है, हम आपको एक पेपर दे रहे हैं, उसमें जो लिखा है आपको उस वीडियो में बोलना है, ताकि कल के डेट में इस लड़के को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो मुझसे ये बुलवाया गया था कि ना मैं इस इंसान से कोई डाउरी मांग रही हूँ, फ्यूचर में मैं इसके ऊपर लव जिहाद का केस नहीं कर सकती, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी इसकी नहीं है। ये चीज़ मुझे बुलवाया गया था, मेरे हाथ में एक पेपर था, वो पढ़ के मुझे बोला गया था ये चीज़ बोलने के लिए, ठीक है, कि अगर कल का रोज़ अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, ठीक है। ये चीज़ें मुझे बुलवाई गई थी। My name is and I have changed my name from Anjali to Aisha Siddika. I haven't executed any GPA or any other documents to my family members, either in Bangalore or in Kashmir or any of my friends. It's my personal choice and decision to change my religion and get married. Leaving this, I have not executed any type of documents in favor of family members or friends in Kashmir or either in Bangalore. और इसने मुझे कल्चर सीखने के लिए एक मौलवी से बात की थी, ठीक है, कि मुझे क्या क्या सीखना चाहिए, हाउ टू प्रे, ठीक है, उनके प्रेयर्स, उनके जो भी चीज़ें होती हैं वो अरबिक में, वो सारी चीज़ मुझे सीखने के लिए इसने एक मौलाना से बात करी थी नियर बाई मस्जिद में जाके। मौलाना जी जो है आपके जो मोहम्मद यूनुस को क्या बताया गया था, उस वक्त आप क्या बोल रहे थे?
मोहम्मद यूनुस तो मौलाने से अंदर बात कर रहे थे मस्जिद में, ठीक है, मुझे बाहर खड़ा रखा था। तो मुझे जो उनके कुरान से जो भी चीज़ें होती हैं वो चीज़ सीखने के लिए वो मुझे वो अंदर बात करने के लिए गया था कि इसको सिखाना है, ये सारा चीज़ उसको सिखाना है ताकि ये थोड़ा बहुत जान सके हमारा क्या कैसे होता है, प्रेयर क्या होता है, ठीक है। वो मुझे बाहर में आके बोला कि हाँ ठीक है, वो अपना प्रोसेस करेंगे, बट पहले तुम्हारा नाम चेंज करना है, ठीक है। तो इस्लाम का एक लड़की का नाम सजेस्ट किया इसकी मम्मी ने कि यही नाम रखना है इसका, ठीक है। तो ये नाम चेंज करना है करके इसने आधार कार्ड में मेरा नाम चेंज करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। आपका नाम क्या रखा? आयशा सिद्दीका, इसकी मम्मी ने बताया था कि ये नाम रखना है इसका, ठीक है। तो वो नहीं हो पाया समहाउ, ठीक है, गवर्नमेंट आईडी से वो नहीं हो पाया। तो वहाँ से फिर मौलाना ने बोला कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, आप कोई और तरीका अपनाओ। तो जाके एफिडेविट फाइल हुआ था कि मैं अपना नाम खुद अपनी मर्ज़ी से चेंज कर रही हूँ क्योंकि मैं इस्लाम कबूल कर रही हूँ। तो ये प्रोसेस कराया गया था मेरे साथ। ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತುಂಬ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಂಚೆ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಂತರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಿತನಾಗೋದು, ಹಿಂದೆ ಬೀಳೋದು, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಪೋಸು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಇವಳನ್ನು ಮೊದಲು ಮತಾಂತರಿಸಿ ನಂತರ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು FIR ಆಗೋವರೆಗೂ ಮದುವೆನೇ ಆಗದೆ 2 ಬಾರಿ ವಧುವಿನಂತೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. जी बोलिए कि आपने बोल रहे थे कि अबॉर्शन के पहले कुछ मौलवी ने बताया, जी, हिंदू वगैरह बोले तो कन्वर्शन होने के पहले जब बच्चा हुआ तो हिंदू वो उन लोग नहीं मानते हैं। उसके बारे में बताओ। जी, तो इसने पूछा था, ठीक है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये बच्चा हमारे अभी तुमने शादी नहीं की है तो ये माने नहीं होगा, इसको गिरा दो। इसकी सिस्टर ने भी, इसकी सौतेली बहन है एक, उसने भी यही चीज़ बोला कि इसको गिरा दो, ठीक है, अभी तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो हमको हमेशा फ़ोन पे प्रोवोक करते थे कि तुम लोग इंडिया के बाहर चले जाओ, ठीक है। मेरा हस्बैंड इसमें एम्बेसी में काम करता है, वो वीज़ा वगैरह प्रोवाइड कर देगा, तुम कनाडा चले जाओ, तुम बाहर चले जाओ, ठीक है। वो ये सब चीज़ें वो मुझे सिखाया करती थी, उसकी सिस्टर। तो क्योंकि मेरी कंपनी उस टाइम मुझे स्पॉन्सर कर रही थी बाहर जाने के लिए, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के ये भी बाहर जाना चाहता था। तो ये मेरे साथ मिलके ये बाहर जाना चाहता था। ये चीज़ें अपनी सिस्टर को इसने बताई तो वो मुझे सिखाती थी कि तुम चले जाओ। तो बच्चा गिराने का आइडिया दो लोगों का था। एक तो वो मौलाने ने इसको बोला, रिलीजन के नाम पे बोला कि आप गिरा दो, दूसरा इसकी सिस्टर ने बोला कि गिरा दो, ठीक है। तो वो मेरा पहला अबॉर्शन था। दूसरा अबॉर्शन इसने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारपीट किया था। जब मैंने बोला भी था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी इसने उसी जगह पे मारा और जानबूझ के मेरे बच्चे को अबॉर्ट करने की कोशिश की गई। ये देख माई, पूरा मुझे पेट में मारा भाई, मुझे उठने नहीं हो रहा। ये पूरा ब्लीडिंग है, पूरा ब्लीडिंग भाई, देख ये पार्ट में पूरा नीचे ये मेरा नहीं हो रहा भाई, मुझे मैं। फिर तीसरी बार भी इसने मारपीट किया था और तीसरी बार भी मारपीट के कारण ही ऐसा हुआ मेरे साथ। वो मोहम्मद यूनुस उर्फ अब्राहम खान, वो कैसा आदमी था वो बताइए। अबॉर्शन मतलब जब आप प्रेग्नेंट हो ये पता चल के भी उसने मारा, बहुत मारा, पीटा, तो आपको हरास किया, सैडिस्ट बिहेवियर, वो कैसा था? उसके पास दिल नहीं है, वो बहुत मारता है, जब मारता है तो ठीक है। वो मैं बस इतना मुझे ये सीन याद आता है कि वो मुझे बोलता था तुम यहाँ बैठो, और वो मुझे बहुत मारता था और मेरी वीडियो बनाता था
और वही वीडियो वो 4 लोगों को सेंड भी करता था कि आज मैंने इसको बहुत मारा है, जैसे कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। वो मेरे साथ ऐसा करता था, आपको मार के दूसरों को भेजता था? जी बिल्कुल, मुझे बंद मार के रूम में बंद कर देना, मैं दर्द में हूँ, कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है। वो फ़ोन नहीं उठाता था मेरा, कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन जब अपनी ज़रूरत होती थी तो वो मेरे पास आ जाता था, चाहे वो फिज़िकल नीड हो, फाइनेंशियल नीड हो। मोहम्मद यूनुस ऐसा इंसान है, वो इंसान ही नहीं है, वो जानवर है। मैं जानती हूँ मेरे दर्द क्या है। जब हाई टेस्टोस्टेरोन में रहते हो, स्टेरॉइड लेते हो, ठीक है, अपने आप को बहुत बड़ा एथलीट, बॉडी बिल्डर बोलते हो, और ड्रग्स लेता था? जी। तो वो जब हाई स्टेरॉइड में रहता था ना, तो मैं डरी रहती थी कि 1 हफ्ते तक उससे कोई बहस नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो ये अभी बहुत, अब आज इसने इंजेक्ट किया है, आज से आगे आने वाले 5 दिन मुझे इससे दूर ही रहना, नहीं तो हर छोटी बात पे ये मुझे मार सकता है। तो मैं उस खौफ में रहती थी उसके साथ। तो वो बिना स्टेरॉइड का रह नहीं सकता है, ठीक है, वो एडिक्टेड था उस चीज़ को। कभी कभी आपको ये फील हुआ कि ये मार भी सकता है मुझे, मर्डर भी कर सकता है? बिल्कुल। वो जब मुझे मारता था ना, तो ये जो मेरा जो नेक है इतनी ज़ोर से दबाता था कि एज इफ लगता था कि अब ऐसे चला, हो गया, ख़त्म है, मेरी कहानी ख़त्म है। मैंने उससे ना बाद में कभी अच्छे मूड में ये चीज़ मैंने उससे पूछा भी है कि जब तुम मुझे मारते हो तुम्हें थोड़ा सा भी तरस नहीं आता है क्या? तो वो कहता था कि मुझे पता है कि कितना दबाना है, आई नो कि मुझे कितना प्रेस करना है। वो ही इज लाइक सैडिस्ट। ही इज़ अ सैडिस्ट। जब वो खुद प्राउडली कह रहा है कि मुझे पता है कि कितना प्रेस करना है, कितना हर्ट करना है, मुझे पता है। आपको गला दबा के वो आनंद लेता था? यस, कह सकते हैं, क्योंकि शायद वो कहता था कि वो मुझसे प्यार करता है। वो ये प्यार नहीं है। जब उसकी ज़रूरतों के लिए मैं जब कभी ना बोलती थी, इन केस मान लो उसे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मैंने बोला कि अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं दुनिया की सबसे बुरी इंसान हूँ। वही अगर मैंने दे दिया उसको तो वो मेरे लिए कुछ भी कर देगा। तो आपने ये बताओ कि आप किधर किधर गए थे जी। इस 2 साल या 3 साल में, क्या क्या हुआ उसके हिसाब में आपको कुछ इफेक्ट, क्या कुछ उसको फंसाया आपने, उधर भी कुछ वो किया कि भावनाओं को यूज़ करके, उसके बारे में बताओ। मेरा बर्थडे था तो हम फर्स्ट टाइम गोवा गए थे। तो वहाँ पे उसने, मतलब हम अगर कहीं भी जाते थे ना, वहाँ से बिना मारपीट के वापस नहीं आते थे। मेरे साथ गोवा में मारपीट हुई है, कोलकाता में मारपीट हुई है होटल रूम में। तो जब हम थाईलैंड गए थे वहाँ पे हमारे साथ मारपीट करी गई है। तो ये कोई नई बात नहीं रहेगी थी मेरे लिए। मतलब जो चीज़ वो घर में करता था वो बाहर भी कर रहा है, ऑन वेकेशन भी कर रहा है, वही सेम चीज़, ठीक है। तो हर जगह मेरे साथ, मतलब वो फिज़िकल अब्यूज़ उसने करा है हर जगह, ठीक है। तो कोलकाता में भी मेरा जो फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था वो उसी मारपीट की वजह से हुआ था। दी ललित अशोक होटल में वो काम करता है एज अ डांसर, ठीक है। वो जो डूड बॉयज़ होते हैं जो बिना कपड़ों के डांस करना, वो वही काम करता है। तो उसका शो हुआ था कोलकाता में, तो मुझे साथ में लेके गया था वो, ठीक है, कि चलो हम 3-4 दिन उधर टाइम स्पेंड कर लेंगे। बट वो जिस दिन हम पहुँचे हैं उसके अगले दिन ही ड्यू टू सम सर्कमस्टांस मैंने एक फ़ोटो इंस्टाग्राम पे स्टोरी में लगाई थी, हमारी साथ वाली सेल्फी लगाई थी। उस चीज़ को लेके वो मुझे बहुत मारा था कि तुम मेरे साथ कहीं भी पब्लिकली फ़ोटो नहीं लगा सकती हो, तुम्हें अपना लगाना है तुम लगाओ, मेरे साथ नहीं लगाना है तुम्हें, ठीक है। उस बात को लेके उसने मुझे बहुत मारा था। तो मेरा फर्स्ट मिसकैरेज वहीं पे हुआ था। उस दिन से आपको डाउट आने लगा कि ये रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। मैंने वहीं पे डिसाइड कर लिया था कि बैंगलोर जाने के बाद मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगी। मैंने जब भी उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करी है, वो मेरे सामने एक वॉल बन के खड़ा हो जाता था, इमोशनल, अपने आप को इमोशन में दिखा के, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। कोई भी मुझे ना मेरे मम्मी सपोर्ट में है, ना फादर सपोर्ट करते हैं, कोई भी नहीं है मेरा, बस यू आर ओनली देयर। कन्वर्जन करने के टाइम में उसने मेरे फैमिली बैकग्राउंड की जानकारी ली थी कि मैं कितनी बच्चे हूँ अपने फादर की और मेरे ऊपर कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने बताने से मना करी थी। हाँ, कितने सिबलिंग्स हैं ये तो मैंने बताया कि मेरा एक ही भाई है,
लेकिन मेरे ऊपर कितनी वो मुझे खुद भी नहीं पता है, तो मैं उसको क्या बताऊंगी। और ये चीज़ें रिलेटेबल नहीं है ना। तुम अगर शादी कर रहे हो, किसी का धर्म बदल रहे हो, तो तुमको उसकी प्रॉपर्टी से क्या लेना देना है, ठीक है। तो ये चीज़, तो यहाँ पे मुझे एक डाउट आया, क्योंकि उसका एक मामा है जो हमारे घर पे आया था उसके साथ, तो उनके मुंह से मैंने ये चीज़ सुना था। उसने तारीफ़ करते हुए मोहम्मद यूनुस को बोला था कि वाह इब्राहिम, तुम्हारे तो दोनों हाथ शहद में हैं, क्योंकि तुम्हारी फर्स्ट वाइफ भी अच्छा खासा कमा रही है, शी इज़ अ डेंटिस्ट, ये भी अच्छा खासा कमा रही है, उसके फादर की भी प्रॉपर्टी उसके नाम पे है, इसके भी होगी ही, तो तुम्हारी तो दोनों हाथ में शहद है। ये डायलॉग उसके मामा ने मेरे घर में मेरे सामने बोली थी। मैंने मजाक के रूप में लिया, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये सब कुछ रिलेटेड है। आपने बोल रहे थे कि डूड डांसर, ये क्या होता है? डूड डांसर इज़ लाइक आप बार टेबल पे खड़े होके डांस करना, सिड्यूस करना, सिड्यूसिव डांस जो होता है, आधे बदन दिखा के जो डांस करते हैं, वैसे वाले परफॉर्मेंस को इसका ये शो करने जा रहा था, किधर किधर गया है वो ललित अशोक होटल के जितने भी होटल्स हैं वो उसको भेजा जाता है, वो कहीं भी चला जाता है, मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता, बैंगलोर में, खास करके उसका बैंगलोर में ही होता है, ठीक है। तो वो उन लोगों के लिए परफॉर्म करता है। कि अबॉर्शन के बाद आपको फाइनली जब बेंगलुरु कोलकाता में आपको मार बहुत गिरा, अबॉर्शन भी हुआ मारते समय, जब आपने डिसाइड कर लिया कि इसके ऊपर मैं इसके साथ नहीं रहना है। जब कंप्लेंट कब करे और उसका हिसाब बताओ, पुलिस कंप्लेंट और उसके ऊपर अभी बेल हो गया, कैसा बेल उसको मिल गया जी, वो उसके बारे में बताओ। जब मेरा सेकेंड टाइम मिसकैरेज हुआ था, जब उसने मुझे मारपीट किया था, सेकेंड टाइम मिसकैरेज करा था, तो मैंने महिला संस्थान को अप्रोच किया था कि मेरी मदद करी जाए, क्योंकि ये मुझे उस हाल में छोड़ के ये करीब 2 दिन तक गायब था, ठीक है। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे लगा पुलिस वालों के पास जाऊंगी तो वो शायद मेरी हेल्प ना करें, तो मैंने महिला संस्थान को अप्रोच किया। उन लोगों ने इन लोगों को फ़ोन करके बुलाया था, तो वहाँ पे हमारी बात हुई थी, ठीक है। वो भी मैं वहाँ पे केस करने के लिए ही गई थी, बट वो पहली बार था जब मैंने अपने लिए स्टेप उठाया। फिर इसने मुझे मना के, बहला के, फुसला के फिर ये घर लेके आ गया था, तो वो मेरा अप्रोच मतलब व्यर्थ गया, वो वेस्ट चला गया। फिर दूसरी बार मैंने फिर पुलिस में, जब इसने मारपीट करी थी, तो MLC केस फाइल हुआ था हॉस्पिटल वालों के थ्रू, तो मैं पुलिस स्टेशन गई थी नियर बाई, और मैंने वहाँ पे केस करने के लिए अप्रोच किया था, लेकिन पुलिस वालों ने बोला कि ठीक है, ऐसे होता रहता है, लिव इन रिलेशनशिप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वार्निंग दे के छोड़ दो। तो वार्निंग दिला के वहाँ पे मैटर क्लोज हो गया था। वार्निंग आज मैंने दिया है, 2 दिन के बाद इसने फिर से वही चीज़ किया, तब जाके मैंने FIR कराया। तो वो मेरा फाइनल कॉल था, जो मैंने पहले भी 2 बार मैं ट्राई कर चुकी थी कि मुझे लीगल एक्शन लेना है इस इंसान के थ्रू, इसके अगेंस्ट में, बट वो मैं नहीं कर पाई। बट थर्ड टाइम मैंने लिया एक्शन, मैंने FIR दर्ज कराई वहाँ पे। तो FIR होने के बाद में वहाँ स्टेशन में इन लोगों ने केस वापस ले लो, ये कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन इसकी फैमिली वालों ने मुझे पुलिस वालों के सामने ही गाली वाली दिया, ठीक है। उन लोगों ने कोई मतलब इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, ठीक है, हम देख लेंगे ऐसा करके वहाँ पे। तो मुझे टॉर्चर किया जा रहा था, मेरे फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा था, ठीक है। फ़ोन करके पूरी रात उनको टॉर्चर किया गया, ठीक है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम उसको यहाँ बैंगलोर में रहने नहीं देंगे, ठीक है, वो कहीं की नहीं रहेगी, ठीक है, 10 लड़के भेज देंगे उसके घर पे, उसकी सोसाइटी में उसको पूरा बदनाम कर देंगे, ठीक है, ना उसकी जॉब रहेगी, ना वो यहाँ रह पाएगी। क्यों? इसका एक कज़न ब्रदर था जो मुझे फ़ोन पे धमकी देता था। कौन है वो लड़की? उसका नाम सलमान। तो वो मुझे धमकी देता था, ठीक है, वो इसने स्पीकर पे फ़ोन रख के उससे धमकी दिलवाई थी, ठीक है, कि वो बोल रहा था कि हम उसको ज़िंदा नहीं रहने देंगे, ठीक है, उसको मतलब वो ऐसा मर्डर करेंगे कि उसके ख़ानदान वालों को भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ गई डेड बॉडी, ये चीज़ बोला था उसके भाई ने। तो जब मैंने FIR के टाइम में जब मैं पुलिस वालों को ये सब चीज़ बता रही थी, तो ये चीज़ें उन्होंने इग्नोर करी, नहीं लिखवाया, बस ये लिखवाया कि हाँ
वो मेरे पे मारपीट करता था, फाइनेंशियली डिपेंडेंट था, ऑलरेडी मैरिड था। मतलब ऐसे ऐसे आईपीसीज लगाए जो कि बेलेबल हैं, इजीली बेल मिल जाता है। मैं चाहती थी कि जो मेरे साथ एक्चुअल में हुआ है, जैसे जो लव जिहाद का मैटर है, उन्होंने उस चीज़ को हाईलाइट ही नहीं किया। ठीक है, वो 4 से 5 आईपीसीज लगे लेकिन सारे अवेलेबल थे। वो एफआईआर हुआ, अगले दिन उसको जुडिशल कस्टडी में भेजा गया, 15 दिन के बाद वो छूट के आ गया। ठीक है, वो अपनी लाइफ जी रहा है, वो शो ऑफ कर रहा है दैट आई एम फाइन। ठीक है, सोसाइटी में खुलेआम घूम रहा है, पार्टीज़ जा रहा है, डिनर्स पे जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें वो कर रहा है। मेरे 3 साल बर्बाद किए उसने। इट्स नॉट अबाउट कि वो सिर्फ एक एक दिन बर्बाद किया उसने, मेरी ज़िंदगी बर्बाद, आधी से ज़्यादा बर्बाद कर दी। मुझे मेंटली वीक कर दिया, फिज़िकली तुमने मुझे बहुत हरास किया है, टॉर्चर किया है। ठीक है, मेरा वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ सब कुछ ख़राब किया। और पुलिस वालों ने सिर्फ 15 दिन की जुडिशल कस्टडी में रख के उसको छोड़ दिया। ये चीज़ मुझे नहीं बर्दाश्त हो रही है। ठीक है, क्योंकि आज उसने मेरे साथ ऐसा किया है, हो सकता है 1-2 साल के बाद वो फिर वैसे ही किसी और के साथ भी कर सकता है। वो वैसी फैमिली से ही बिलोंग करता है। ठीक है, उसकी फैमिली में हर किसी ने 2-2, 3-3 शादियां कर रखी हैं। उसके फैमिली के बारे में बोलो कि कैसे है वो लोग। उसकी मम्मी ने 2 शादी कर रखी हैं, फर्स्ट डिवोर्स हो चुका है। ठीक है, ये सेकंड हस्बैंड का बेटा है। इसकी सिस्टर ने 2 शादी कर रखी हैं, फर्स्ट डिवोर्स है, वो सेकंड वाले हस्बैंड के साथ रह रही है। ठीक है, इसके मामा ने भी एक क्रिश्चियन औरत को कन्वर्ट करके शादी करी हुई है। ठीक है, फिर इसका अपना कोई भाई तो है नहीं, सारे स्टेप ब्रदर्स हैं, लेकिन सब वो मवाली टाइप के होते हैं ना। कोई प्रॉपर पढ़ा लिखा नहीं है, कोई भी अपर ग्रेड, कोई मतलब एजुकेशन फील्ड में कोई नहीं दिखेगा, ऑफिस वाले लोग नहीं हैं। मतलब बहुत ही पुअर मेंटालिटी वैसे इससे बिलोंग करता है, ये फैमिली से बस। और ये खुद भी पढ़ा लिखा नहीं है, ही इज़ जस्ट 6 स्टैंडर्ड, बस 6 स्टैंडर्ड तक ही इसने पढ़ाई करी हुई है। ठीक है, तो ये वैसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसको वैल्यू नहीं पता है रिलेशन का, फैमिली का, क्योंकि ये खुद मुझे भी अपने माता पिता से बात करने से मना करता था फ़ोन पे। क्यों करना है बात, वो तुम्हारा सपोर्ट थोड़ी करेंगे। जो मेरा सपोर्ट नहीं करेगा तो उससे दूर रहे, तुम अपने दोस्तों से दूर रहो। ठीक है, तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। ठीक है, मुझे बुर्खा पहन के घर से बाहर निकलने के लिए बोलता था। ठीक है, और कहीं भी जाना है तो तुम मेरे साथ जाओगी। ठीक है, आप बुर्का पहने कभी? हाँ, मुझे पहनाया गया। मेरा एक फ़ोटो भी मौलवी ने बोला था कि वो फ़ोटो चाहिए मुझे इसका बुरखे में, तो उसके लिए स्पेशली भी पहनाया गया था। और ऐसे भी ये मुझे बोलता था कि तुम बुर्का पहन के ही बाहर निकलो घर से। ठीक है, हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है। तो उसके बाद मैं कहीं अकेले नहीं जा सकती थी, इतनी पाबंदी थी। तुम कहीं भी जाओगी तो मेरे साथ ही जाना है तुमको। ठीक है, और कहीं भी जा रहे हो मेरे को पता होना चाहिए कि तुम कहाँ गए हो और कहाँ नहीं गए हो और कितने देर में तुम घर आए हो। मुझे वो जो दीवार क्लॉक होती है ना, मुझे वीडियो बना के भेजो कि हाँ मैं इतने बजे घर आ गई हूँ। तो इतनी पाबंदियाँ लगा के रखता था मेरे ऊपर। ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗುವಂತೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶೋಷಣೆ, ಅವಳಿಂದ ಹಣ ಪೀಡಿಸಿ, ಹಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನಂತರ ಅವಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಹೋಗುವುದೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನುಸ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಹಿಂದೂ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ಗುರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನುಸ್. ಮತ್ತು ಇವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಹೇಳುವುದು ನೋಡಿದರೆ ಒಮ್ಮೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇವನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಂಟು. ಬನ್ನಿ ಆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ. जो आपने बता रहे थे कि ये पाकिस्तान गया हुआ है, हाँ. क्यों गया था और कितने दिन था उधर? इसने मुझे बताया करता था ये अपनी कहानियाँ कि मुझे मेरी मम्मी बहुत सारे गल्फ़ कंट्रीज़ में लेके गई हैं। ठीक है, तो मैं पाकिस्तान में भी करीब 4 से 5 साल रहा हूँ। तो बिना वीज़ा के रहा हूँ। ठीक है, तो इसने मुझे बोला था कि वहाँ इसका कोई रिलेटिव रहता है, कोई मामा रहते हैं इसके। ठीक है, तो उनके घर पे ये रहा है। तो वहाँ पे रहने के बाद में इसका फ़र्स्ट पासपोर्ट जो है वो समहाउ शायद ब्लॉक या कुछ तो गवर्नमेंट रीज़न रहा होगा, गवर्नमेंटल रीज़न, जिसकी वजह से वो चला गया।
इसने अपने नाम का स्पेलिंग चेंज करके नया पासपोर्ट इशू कराया हुआ है और ऑफिशियल नेम में ये अपना मोहम्मद यूनुस ही लिखता है, लेकिन वो जो फर्स्ट पासपोर्ट को लॉस्ट डिक्लेयर करके नया पासपोर्ट जो इसने बनाया गया है, कुछ गवर्नमेंटल रीज़न रहा है इसका, क्योंकि ये पाकिस्तान में इलीगल तरीके से 4 से 5 साल रह के आया है। ओके, और पुलिसों के बारे में बताओ, पुलिस और आपके कम्युनिकेशन कैसा था इतने कंप्लेंट करने के बाद? जिस दिन एफआईआर दर्ज हो रही थी, पुलिस बहुत एक्टिव थे वो लोग, ठीक है। उन लोगों ने ऐसा दिखाया कि दे आर हेल्पिंग मी इन ऑल द वेज, लेकिन उसको जुडिशल कस्टडी में भेजने के बाद में जो भी उन्होंने प्रोसेस में मुझे कोऑपरेट करने के लिए बोला, मैंने सब कुछ किया, बट वो बेल पे निकल के आ गया। मुझे 2 बार धमकियां भी आई थी फ़ोन पे, वो बेल पे रिलीज़ हुआ है। उसके बाद में पुलिस मेरे केस में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। मैं अगर उनको कहती भी हूँ कि आप चार्जशीट का, अगर मैंने उनको कॉल, लास्ट टाइम जब मैंने उनको कॉल किया था स्टेटस जानने के लिए कि चार्जशीट का क्या स्टेटस है सर, तो मैडम आप तो 2 दिन पहले ही ये एविडेंस जमा करके गया है, आप ऐसे नहीं, बार बार ऐसे फ़ोन नहीं कर सकता, जब होगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। इस तरह से करके उन्होंने बोला। तो फिर मैंने अपने रिलेटिव में डिस्कस किया, ठीक है, कि हमको केस कुछ वीक सा लग रहा है, ठीक है, बिकॉज़ मुझे ऐसा डर भी लगता है क्योंकि वो डोमेस्टिक वायलेंस करता था मेरे साथ, तो कल को वो कुछ भी कर सकता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। मैं कैसे उसको, वो खुला घूम रहा है, मैं डर से मैं कहीं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। 200 मीटर की डिस्टेंस पे भी अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं अपने रिलेटिव के साथ जाती हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि मुझे ऐसे तो मुझे उसको नहीं देख पाऊँगी मैं कि वो खुला घूम रहा है सोसाइटी में, तो आई शुड टेक सम एक्शन। तो हमने एक अच्छे लॉयर से बात किया, उन्होंने हमको आइडिया दिया कि आप हिंदू समाज वालों को आप कांटेक्ट करो। तो तब जाके हमने बजरंग दल वालों को हमने जाके विज़िट किया अभी 4 दिन पहले, और उन्होंने हमारी हेल्प करी और अश्योर भी करा कि आगे हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपका। ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊದಲ FIR ಲಾಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನುಸ್ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವರನ್ನ ಸಂತೈಸ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಾಗ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ FIR ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಆರೋಪಿಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಗುವಂತಹ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೇವಲ 15 ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಶದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ನೊಂದು ಬೆಂದು ಕೊನೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ अप्रोच ಆಗ್ತಾರೆ. वो मुझे पहले भी जब मैंने स्टेप लेने की कोशिश करी थी तो उसने मुझे धमकी दी थी कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, मैं FIR पे निकल जाऊंगा, फिर तुम सोच लेना मेरा क्या होगा। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में थी। वो आपको वो 3 साल से जानते हो, उसका कुछ पॉलिटिशियन लिंक था वगैरह? नो नहीं, लेकिन फिर भी मुझे धमकी वो दिया था। ऐसे मुझे डीपली नहीं पता, शायद उसका ना हो, लेकिन उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इस जिहाद में, पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, मैं बता सकती हूँ, क्योंकि उसने मुझे जिससे भी मिलवाया है तो उनकी जानकारी में ये है कि मैं वो लड़की हूँ जिसको वो कन्वर्ट करके शादी करने के पर्पज़ से वो ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो सारे इन्वॉल्व हैं, उसकी मम्मी को भी पता है, ठीक है, उसने जिस लड़की को पहले से शादी करके रखा था उसको भी पता है, दे आर ऑल इन्वॉल्व। उसके मामा को पता है, उसकी स्टेप सिस्टर को पता है, ठीक है। उसके सारे दोस्तों में वो मुझे अपनी वाइफ करके इंट्रोड्यूस कराता था, और ये चीज़ें मुझे तब पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरा यहाँ पे मैं ऑफिशियल पर्पस से हूँ बैंगलोर में, मैं ये चीज़ नहीं बताना चाहती हूँ कि मतलब मैं ऐसे करके किसी से शादी कर रही हूँ, इन सर्कमस्टांस में कर रही हूँ, रिलीजन चेंज करके कर रही हूँ, तो ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती थी। बट वो ऐसा बोलता था, ये मेरी सेकंड वाइफ है, अपने लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस कराता था, ठीक है, 4 लोगों से। अपने एक दोस्त के सामने उसने मेरे साथ बहुत गलत करने की कोशिश करी थी, मुझे ड्रग दिया था,
अपने एक दोस्त के सामने, उसको वो बेस्ट फ्रेंड कहता है, उसके सामने उसने भी लिया था वो ड्रग, मुझे भी दिया गया था, और उसने मेरे साथ बहुत गलत करने की कोशिश करी थी अपने दोस्त के सामने। ये मुझे लेकर गया था उस आप जगह बोल पे। सकते हो? इसने मुझे बोला कि ये मुझे पार्टी लेकर जा रहा है, फ़ोन करा कि रेडी हो जाना 8 बजे तक, मैं तुझे पार्टी लेके जा रहा हूँ। मैं रेडी हो गई। ये घर पे आया एंड जिम का बैग लेकर आया था। देन आई आस्क्ड कि तुम जिम जा रहे हो? तो नहीं, मेरा वो दोस्त है ना, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। उसने मुझे बुलाया है पर्सनल ट्रेनिंग देने के लिए, मुझे लेकर गया। वो गोल्फ कोर्स रोड है ना, वहाँ पे एक होटल है, बहुत अच्छा होटल है, आई थिंक वहाँ पे लेके गया था। टेरेस एरिया में उस होटल के जिम है, वहाँ लेकर गया था। तो ये लोग अंदर जिम कर रहे थे। सब कुछ ख़त्म होने के बाद में मुझे बाहर में पूल एरिया में मुझे ड्रग दिया गया था। वो चॉकलेट जैसा था, ऑफ बस वो भी ले रहे थे ना, लो तुम भी ले लो करके, मुझे बस नॉर्मल वे में मुझे ऑफ़र किया गया। मुझे नहीं पता था कि वो पिल्स क्या है। खा लिया मैंने। जैसे स्वैलो किया तब जाके वो हंसी मजाक में कह रहे थे कि ये फलाना फलाना पिल है, ठीक है। तो वो आई थिंक कुछ सिड्यूसिव पिल था। फिर मैं बहुत मतलब अनकॉन्शियस हो गई थोड़े ही देर में। मेरे साथ उसने वहाँ पे फ़िज़िकल चीज़ें करने की कोशिश करी, बट थोड़े बहुत मैं होश में थी, तो मैं अपने आप को मैंने कंट्रोल किया, मैं वहाँ से निकल गई। फिर मुझे घर जाना है करके, मैं होश में नहीं थी, एज़ इफ़ कि मतलब कुछ हो गया है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे घर जाना है। तो मैंने जब ऊंची आवाज़ में सीन क्रिएट करने की कोशिश करी, तब ये मुझे वहाँ से लेके निकला, क्योंकि होटल के स्टाफ मेंबर्स वगैरह देख लेंगे करके। तो मैंने फिर वहाँ से हम निकले, ठीक है। लेकिन वो जो सीन था ना, वो अनफॉरगेटेबल है, बिकॉज जो चीज़ें एक कपल की लाइफ में प्राइवेट होती है, उसने मेरे को अपने दोस्त के सामने करने की कोशिश करी, ठीक है। और ये बहुत प्राउड बोलता है उस चीज़ को, हाँ ठीक है ना, हम लोग तो आज के ज़माने के लोग हैं, ऐसा चलता है करके इसने मुझे नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी। ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆರೋಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನುಸ್ ಉರ್ಫ್ ಅಬ್ರಹಂ ಖಾನ್. ಯಾವಾಗ ಮೊದಲು ಇವರ ಪ್ರೀತಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷ ಕಳೆಯುತ್ತೆ. ನಂತರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವನದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತಾಂತರಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಮದುವೆ ಆಗೋಣ ಅಂತ. 2 ಬಾರಿ 3 ಬಾರಿ ಹಾರಿಕೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವರ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಇವಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. वो उनकी फैमिली ने एक लाइन यूज़ करी थी मेरे लिए कि तू उससे मिल के आया है, तू ठीक है, तू उसके साथ सो के आ जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू उसके साथ शादी मत कर, ठीक है। तो मतलब इसकी जितनी ज़रूरतें जो इसको थी मेरे साथ रिलेशनशिप में 3 साल में, उसने उस हद तक जो भी इसको नीड थी वो मेरे से पूरी कराया इसने। जब इसको लगा कि अब मेरी ज़रूरत उसको नहीं है, तो फिर वो मुझे ऐसे मार पीट करके मुझे टॉक्सिक बना के रखना, ठीक है, ऐसी हरकतें वो मेरे साथ करता था। और इसकी फैमिली फुल सपोर्ट करती थी उस चीज़ों में। पुलिस ने बेल उसको दे दिया. वो आपने पूछा कि चार्जशीट में क्या है, पुलिस ने आपको क्या बताया? चार्जशीट अभी फाइल नहीं हुई है चार्जशीट अभी जी। फाइल नहीं. मुझे बुलाया गया था, कोर्ट में बुलाया गया था मेरा स्टेटमेंट रजिस्टर करने के लिए। तो मैंने जज के सामने ये सारी स्टोरी मैंने बताई। 164 स्टेटमेंट जज के सामने बोल दिया आप? यस, जो आपने अभी बताया मुझे वो सभी जज के सामने 164 स्टेटमेंट में दाखिल है. हाँ। जज ने मुझसे पूछा था वो अभी कहाँ है, मैंने बोला कि मैम वो अभी जुडिशल कस्टडी में उसको रखा गया है। मैंने मंगलवार को, ट्यूसडे को स्टेटमेंट दिया, फ्राइडे को उसको बेल मिल गया, ठीक है। तो वो भी हमको इन्फॉर्म नहीं किया गया था, जबकि हमने स्टेशन में ये चीज़ बोला था
कि मुझे अपने ऊपर खतरा लग रहा है, आप अगर उसको बेल मिलता है आप हमको प्लीज़ इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि हम आपके टच में हैं, तो आप इतना तो आप कर सकते हो हमारे लिए। लेकिन हमको नहीं बताया गया था। मैं जब एविडेंस जमा करने के लिए उनके घर पे गई, पुलिस स्टेशन गई थी, तब हमने पूछा तो उन्होंने बोला हाँ उसको तो बेल मिल गया ना, वो फ्राइडे को रिलीज़ हो गया है। तब जाके हमको पता चला था। ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಹ ಇದೆ. ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ FIR ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆರೋಪಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಆತಂಕದಿಂದ ಜೀವಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ 20ರಿಂದ 30 ಜನ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನುಸ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೆದರಿಕೆಯ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರಿಯರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬಿಗಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಾಳುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿರಲಿ, ಮತಾಂತರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಉಡಾಫೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ಪ್ರಕರಣವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಸಾವಿರಾರು ಕೇಸ್ ಲವ್ ಜಿಹಾದಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯು ಒಬ್ಬರು. अब तो हम सबके बहन के जैसे हो कि 2.5 साल से आप कुछ सफ़र किए हैं ना, उसके बारे में फाइनली आप क्या बोलते हो? दिल से बोलो, मन से बोलो. कुछ हिंदू समाज आपके साथ है, उसके चिंता मत करो, मगर आप सच बोलो कि इस एक्सपीरियंस कैसा था, आप क्या सीख आपको मिला है? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि बैंगलोर में एक पर्पस से आई थी, मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ. मैं इतनी पढ़ी लिखी होके भी मतलब मैं इस ट्रैप में फंसी हूँ. ये कोई मजाक नहीं है. अगर इंसान आपके दिमाग से 24 घंटे खेले तो शायद आप ट्रैप में फंस जाओगे. वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं. एक साइकेट्रिस्ट भी आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है तो वो आपके दिमाग से खेलता है, तभी आप अपने गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हो. बट यहाँ तो मेरी गलती सुधारी नहीं जा रही थी, मुझसे गलती करवाई जा रही थी. तो वो मैंने किया, ठीक है. हाँ, मैंने उसकी बात में आ गई. उसने ट्रैप करने की कोशिश करी मेरे साथ. लव जिहाद के नाम पे मतलब प्यार के नाम पे लव जिहाद किया गया, ठीक है. मैं बस यही बोलूँगी कि मैंने उस इंसान में बस एक इंसान देखा था स्टार्टिंग में. बस मैंने प्यार किया था. प्यार करना कोई गलत बात नहीं है. प्यार के नाम पे और किसी की फीलिंग्स जान के आप उसके साथ अगर धोखा कर रहे हो वो गलत बात है. और मोहम्मद यूनुस इब्राहिम खान ने मेरे साथ धोखा ही किया है. वो मुझसे बहुत झूठ बोलता था, ठीक है. कई झूठ तो ऐसे हैं जो पता है मुझे कि वो मुझसे कह रहा है, लेकिन मैं उसके डर से, उसके खौफ में मैं बोल नहीं पाती थी कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो फिर मार ना दे. जब चोट लगती है ना तो मतलब वो होता है, दर्द होता है. क्यों नहीं होगा. आप मेंटली भी आप किसी इंसान को आप पूरे 24 आवर आप टॉर्चर कर रहे हो, ठीक है, और फिज़िकली भी आप उसको हार्म कर रहे हो. तो मैं हर तरीके से एक ट्रैप में थी. ना मैं बाहर निकल पा रही हूँ, ना मैं तो यही बोलती थी कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ. तुम भी नहीं जा रहे हो और मुझे भी नहीं जाने दे रहे हो. तो मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लगने लगा था कि अब यही मेरी ज़िंदगी है. ना मैं घर जा सकती हूँ, ना मैं किसी दोस्तों से हेल्प मांग सकती हूँ, क्योंकि तुमने कोई दोस्त रहने ही नहीं दिया. मुझे सबसे कट ऑफ करा दिया. पता नहीं तुम्हारा क्या मकसद था, इसलिए तुमने मुझे पूरी सोसाइटी से कट ऑफ करा दिया, ठीक है. तो मुझे लगता था शायद अब यही होगा मेरे साथ, यही ऐसे ही रहना है मुझे फुल लाइफ, ठीक है. बट समहाउ आई डोंट नो, शायद मेरी प्रेयर्स या मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं कि मैं बच गई. मेरे ही दिमाग में आया कि नहीं, अब मुझे स्टेप लेना चाहिए. चाहे मैं ऐसे भी ज़िंदा रह के भी मैं मरने के ही बराबर मैं ज़िंदगी जी रही थी. तो इट्स ओके. मैं अगर स्टेप लेती हूँ, स्टेप लेने के बाद में भी तुम अगर मुझे मार दोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. इसलिए मैं पुलिस स्टेशन रात के 10 बजे गई थी. इतनी रात में मैं गई. तो जो चीज़ मैं शायद दिन में नहीं कर पाई वो मैंने रात में 2 सेकंड के अंदर डिसीजन लिया और मैं निकल गई, ठीक है. तो तुम किस हद तक किसी को टॉर्चर कर सकते हो, मतलब कभी ना कभी तो
कोई एक्शन का रिएक्शन होता ही है, एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव डन। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि शायद जो मेरे साथ हुआ है बहुत लोगों के साथ भी हुआ है, बट होता ही रहेगा क्योंकि ये लोग ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही करेंगे, बट हम कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ को। तो बस अगर मेरी हेल्प की जाए तो शायद बहुत लोगों की लाइफ बच जाएगी। और मेरे साथ जो हुआ है बस वो भी मुझे थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मुझे जितना इमोशनली वीक बनाया गया, मैं इतनी वीक हूँ नहीं, मैं इतनी वीक कभी नहीं थी। मेरे फादर मैं एक ही बेटी हूँ, वो मुझे एज अ बेटा ही माने हैं, हमेशा से मुझ पे बहुत प्राउड फील किए हैं क्योंकि मैं एक सेल्फ मेड वुमेन हूँ। मैंने कभी अपने मम्मी पापा से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लिया। मैंने जॉब में अच्छा पोजीशन अचीव किया, ठीक है। मैं अपने बलबूते पे मतलब मैं इस लेवल पे आज हूँ, तो मैं इस चीज़ के लिए प्राउड हूँ। लेकिन तुमने मुझे इमोशनली मेंटली वीक कर दिया। मैं ट्रॉमेटाइज्ड रहती थी, ठीक है। मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ लेती थी क्योंकि तुम मेरे साथ ऐसा करते थे। तो शायद इन चीज़ों से मुझे थोड़ा आराम मिले क्योंकि वो 15 दिन की जुडिशल कस्टडी से मुझे सुकून नहीं मिल रहा है क्योंकि तुमने मेरे साथ मेरा 3 साल बर्बाद किया है, ठीक है। और तुम बस 15 दिन में छूट के बाहर आ रहे हो, फ़ोटोज़ डाल रहे हो, घूम रहे हो, पार्टीज जा रहे हो। और मैं जो और आपका अबॉर्शन भी हुआ है, वही कह रही हूँ, मुझे इमोशनली फिजिकली दोनों तरफ से तुमने तोड़ दिया ना। तो गलती करके तुम खुलेआम घूम रहे हो। जिसके साथ हुआ है वो मैं घर में भी सुकून से नहीं रह पा रही हूँ। एक 4 दीवारी में बंद होके भी मुझे डर लगता है, ठीक है। जब मेरे घर की बेल बजती है ना तो मुझे लगता है कि कहीं वही तो नहीं है, कोई कुछ करने तो नहीं आया है, ठीक है। तो मैं इस डर में नहीं जीना चाहती हूँ। मैंने बोल रखा है अपने लोगों को कि अगर तुम मेरे घर आ रहे हो ना तो बेल मत बजाना, मुझे कॉल करना, तो ही मैं दरवाज़ा खोलूँगी। क्योंकि मेरा काम ऐसा, मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो मेरा काम ऐसा है। तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं अगर मुझे ऑफिस भी जाना है, मुझे कुछ काम से घर से बाहर भी निकलना है तो मैं नहीं निकल पाती हूँ। मुझे वेट करना पड़ता है कि कोई रिलेटिव आएगा, मुझे लेके जाएगा। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती हूँ और मैं बैंगलोर छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। क्यों छोड़ूँ? मैं तुम्हारे एक इंसान की वजह से मैं अपना करियर क्यों छोड़ूँ, ठीक है। तो वो तुम मुझे धमकी दिलवाए थे ना कि तुझे बैंगलोर में रहने नहीं दूँगा, या तो तुझे मार के ऐसी जगह पे डालेंगे कि तेरा लाश भी नहीं मिलेगा तेरे पेरेंट्स को। उसके खुद के भाई ने बोला था ये चीज़। तो ठीक है, मैं तो अपने मन से नहीं जा रही, तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो। तो आप अगर जज होते उसको क्या सजा देते? उसको बेल नहीं मिलना चाहिए, वो उसको जेल में रहे वो, क्योंकि वो मुझे उनके नाम पे जिन्होंने जो उसको शायद सपोर्ट भी करेंगे मेरे पीठ पीछे, ठीक है, मैं कह नहीं सकती हूँ, लेकिन उनके नाम पे भी तुमने मुझे धमकी दिया है कि मुझे पुलिस से डर नहीं लगता, मैं बेल पे निकल जाऊँगा। उसको सोसाइटी में भी उसकी मेरे तो सेल्फ रिस्पेक्ट उसने डुबा दी ना। सोसाइटी में भी उसको इज्जत नहीं मिलनी चाहिए वैसे इंसान को, ठीक है। मैं किसी के बुरे की क्या अपेक्षा करूँ, ठीक है। वो तो लोगों की इतना तो आपको बुरा किया ना वो। मैं अपने लेवल से मैं क्या बोलूँ, मेरे आपके जैसे अबॉर्शन किया, धर्म बदला, दोस्तों के सामने नंगा किया, ड्रग्स दिया, हॉस्पिटल में मारा गया, रूम में मारा गया, लॉज पे मारा गया। वो मुझे बंद करके रखता था ना, बंद भी कर रखा। उसको बंद उसको क्या करके होना चाहिए फिर? उसको बंद करके रखो, उसको भी उतना ही मारो जितना उसने मुझे मारा है। मेंटली उसने मुझे बहुत वीक किया ना। शायद उसको कभी रियलाइज़ होगा नहीं कि उसने क्या गलती की है, ठीक है। लेकिन वो समाज में घूमने लायक नहीं है। लोग ऐसे होते, बहुत सारे लोग हिंदू लड़कियों को फंसाकर लव जिहाद नाम पे मर्डर भी कर चुके हैं ना जी। सूटकेस पे कट करके, सूटकेस पे डाल के, देखा है ना आप न्यूज़ पे? जी, आपको कुछ भी नहीं लगता है अभी भी? मैं तो अगर उन चीज़ों से मैं अपने आप को रिलेट करूँ तब तो उसको फांसी होनी चाहिए, ठीक है। उसको तो आजीवन कारावास हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे जुडिशरी इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेती है। उनके नज़र में ये मेरा केस बहुत छोटा है। जब मैं पुलिस स्टेशन गई थी ना तो उन्होंने मेरा केस लेने से ही मना कर दिया था, ठीक है।
कि कुछ होगा तो आप कॉल करना। मैंने बोला सर वो मुझे मार डालेगा, मैं हालत में रहूँगी कि मैं फ़ोन उठा के आपको कॉल करूँ, ठीक है। अभी 2 दिन पहले ही वार्निंग दे के गई हूँ, फिर 2 दिन के बाद उसने मेरे साथ ऐसा किया है, आप प्लीज़ मेरा केस ले लो। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करा था, तब जाके लास्ट में मेरा केस लिया गया था। कौन सा पुलिस स्टेशन? KGHಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. KGಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೇಸು ಸಹ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ಆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು, ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಹಲವಾರು ಬಾರಿಯ ಒತ್ತಡದ ಮೇರೆಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಕೇಸನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. आपको 2 मिनट का समय दूंगा. क्या क्या आप बोलना है लोगों को? इस केस से क्या सबक सीखना है? हिंदू लड़कियां कैसे सबक से और शिद्दत से रहना चाहिए? ऐसे बहुत सारे ऐसे लव जिहाद करने वाले मुसलमान युवाओं बहुत सारे ये ट्रैप करते हैं, उनको आप एक मैसेज देना है आपसे. मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे. मेरे साथ जो हुआ उसमें मैं बस ये इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी लड़कियां इस चीज़ में फंसी हैं या उस कगार पे हैं कि उन्हें बिलीव होता है कि एक मुस्लिम लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहना मतलब वो अवॉइड कर रही हैं कि नहीं, जैसे मैंने अवॉइड किया था उसके रिलीजन को, वैसे आप मत करना। बिकॉज़ ये स्टार्टिंग में ये आपको बहुत मैनिपुलेट करेंगे, आपको हर तरह की खुशियाँ दिखाने की कोशिश करेंगे, बट इनका वो मकसद ही नहीं होता है। ये दिल दिमाग में इनके बस यही रहता है कि इनको कन्वर्ट करना है, क्योंकि इनकी जो सोसाइटी है ना वो कन्वर्जन के बाद इनको कुछ मनी प्रोवाइड करती है। तो इनके दिमाग में है कि अगर मैं किसी अदर कम्युनिटी की लड़कियों को कन्वर्ट करा के शादी करूँगा, ठीक है, तो वो शादी इज़ जस्ट शादी, ठीक है, वो तुमसे कर लेगा शादी, पैसा मिल जाएगा, वो तुमको छोड़ भी सकता है, ठीक है। तो इनके लिए तलाक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बस कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस कम्युनिटी में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 शादियां जायज़ होती हैं, वो तुमको छोड़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लेगा। मैंने गलती करी, आज मैं सफ़र कर रही हूँ, बट मुझे पता है कि ये जो सोसाइटी है, हमारी हिंदू कम्युनिटी जो है वो मेरा सपोर्ट ज़रूर करेगी, ठीक है। और मैं यही चाहूँगी कि मैं जिस लेवल पे पहुँच के मैं हाथ फैला के मैं बोल रही हूँ ना कि मेरा हेल्प करो, तुम उस लेवल पे मत पहुँचना। तुम्हारे साथ एक बार गलत होगा ना, तुम अपनी आवाज़ उठा लेना, क्योंकि मैंने तो 2 से 3 बार हुआ ना तब जाके आवाज़ उठाई। तो तुम ये गलती मत करना। हो सकता है तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा सपोर्ट ना करें, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा सपोर्ट ना करें, तुम अपना सपोर्ट खुद ही करना और जस्ट टेक अ स्टेप। तुम अपने लिए स्टेप लेना, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है ना, मुस्लिम कम्युनिटी, इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैंने करके देख लिया, मैं लव जिहाद के चक्कर में पड़ गई, बट मुझे ट्रस्ट है, ठीक है, अपने सोसाइटी पे, अपनी कम्युनिटी पे, ठीक है, कि मुझे ज़रूर सपोर्ट मिलेगा और मिल रहा है, तभी मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है। मैंने एक बार अप्रोच किया ना इन लोगों को, RSS वालों को, इन्होंने मुझे यहाँ ला के बिठा दिया है ताकि मैं अपनी आवाज़ उठा सकूँ, मैं आप लोगों से बात कर सकूँ, अपनी बात बता सकूँ कि मेरी स्टोरी जो है वो शायद आपके साथ अगर अभी हो रही है ना, तो अभी ही स्टेप ले लो, कल का वेट नहीं करना। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ನೀಚ, ಕಾಮಾಂಧ, ಮೋಸಗಾರ, ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರೇ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನುಸ್ ಉರ್ಫ್ ಅಬ್ರಹಂ ಖಾನ್ ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸಹ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು. ಕಾನೂನಿನನ್ವಯ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ತನಿಖೆಗಳು ನಡೀಬೇಕು. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಲಿ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಯುವತಿಯರಾಗಿರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯರು. ಯಾಕಂದರೆ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅನ್ನುವುದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೇರಳ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ರಂದನ ಮಹಿಳೆಯರದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇದು ಮರುಕಳಿಸಬಾರ್ದು. ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ
ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಹಿಳೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಬಿಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.